السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں راجہ پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں عام انسان شو عام ٹی وی پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اس شو میں روزانہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں محترم منیر حسین دگل صاحب۔ آج بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں اور آج وہ بہت اہم موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم منیر بھائی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر، بالکل ٹھیک. آپ سنائیے، خیر وفیت سے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان بہترین۔ تو آج کس اہم موضوع پہ آپ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی، میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج ہم پاور کے اوپر بات کریں، جو مین پرابلم اس وقت بنتا ہے عام انسان کے لیے۔ یعنی بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے مسائل۔ جی بالکل بالکل. زبردست، یہ تو آج کل کا سب سے ہارٹ ٹاپک ہے۔ ویسے بھی ایک تو قدرت کی طرف سے کچھ ہارٹنس ہے، گرمی کی شدت ہے، اور اس کے بعد ہمارے ہاں شدت اس وقت ہوتی ہے جب بجلی نہیں ہوتی، اور ہم پاکستانی وہ قوم ہیں جو پچھلے 75 سال سے اس ایک نقطے پر ایک اس مسئلے پر پھنسے ہوئے ہیں، اور اس سے نجات نہ ہمارے حکمرانوں سے نجات مل رہی ہے اور نہ ہی لوڈ شیڈنگ سے نجات مل رہی ہے۔ تو عوام تو بہت تپی ہوئی ہے اس وقت، اور بلوں کی جو شدت ہے تو وہ اس قدر زیادہ ہے کہ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے۔ جی بالکل، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج اس ٹاپک کے اوپر اس لیے بات کریں کہ مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ میں سیلز کا بندہ ہوں، اور یہ عام اصول ہے سیلز کا کہ آپ زیادہ لائیں، اگر بکتی ہے زیادہ سے زیادہ تو اس کو زیادہ سے زیادہ بیچا بھی جائے، اور اگر وہ آپ کی بنائی ہوئی چیز بک رہی ہے اور آپ کو پروفٹ آ رہا ہے تو آپ اس کو کیوں نہیں بنا رہے اور کیوں نہیں لوگوں کو مہیا کر رہا ہے جو آپ کے لیے پروفٹ کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ چیز کو بنائیں اور زیادہ سے زیادہ بیچیں اس کو۔ جبکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہمارے پاس جتنے بھی پاور سے ریلیٹڈ پرائیویٹ پلانٹس ہیں یا پاور ہاؤسز ہیں، وہ اپنی جو ان کی کیپیسٹی ہے وہ انڈر کیپیسٹی چل رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم بل دیتے ہیں، اگر کوئی چیز یوٹیلائز کرتے ہیں تو وہ انڈر کیپیسٹی کیوں چل رہے ہیں، وہ اپنی فل کیپیسٹی پہ کیوں نہیں چل رہا ہے؟ اور وہ جیسے تیسے بھی مہنگی بھی ہے، چاہے بجلی وہ لوگوں کو مل کیوں نہیں رہی ہے؟ یہ بحث والی بات ہے، اس کو بھی ہم پروگرام میں آج ڈسکس کریں گے کہ وہ کس داموں ہمیں پڑتی ہے اور کس داموں بیچی جا رہی ہے، اور وہ لوگ کس طرح سے اس کے بل ادا کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی کے حصے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ خریدنے کے لیے، چاہے مہنگی بجلی ہے، خریدنے کے لیے پھر بھی تیار ہیں۔ تو انڈر کیپیسٹی وہ پلانٹس کیوں چل رہے ہیں؟ ان کو فل کیپیسٹی کے اوپر چلا کے تو لوگوں کو بجلی کیوں نہیں دی جا سکتی؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں بینگ سیلز پرسن کہ مجھے پتا ہے عام سا یہ اصول ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کے پاس منہ مانگے داموں بک رہی ہے اور وہ آپ کیوں نہیں بنا رہے اور کیوں نہیں بیچ رہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ نہ صرف ہم پیسے دے رہے ہیں، جو ان کی کیپیسٹی ہے، کیپیسٹی چارجز ہم دے رہے ہیں، جو ان آئی پی پیز کی جتنی کیپیسٹی ہے وہ اس پہ پروڈیوس کریں یا نہ کریں، ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں۔ حکومت پاکستان پیسے دے رہی ہے، ان کے پیسے کبھی رکے نہیں۔ تو اس کے باوجود وہ بجلی ہمیں کیوں نہیں دے پا رہے؟ ہم لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے کیوں نکل رہے ہیں؟ دنیا کی سب سے مہنگی ترین بجلی ہم استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہمارے پاس بجلی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ
इस शोबे को जितना मिस यूज किया गया या मिस मैनेज किया गया, दुनिया में और किसी शोबे को मिस मैनेज नहीं किया गया। बिजली पानी से पैदा हो सकती है, बिजली हमारे यहाँ पानी मौजूद था, इनकी नालायकियों से वो पानी हमारा बंद कर दिया इंडिया ने। हम वो केसेस हार गए, हमने नालायकों को उन प्रोजेक्ट्स का हेड बनाया और वो लोग जो हैं पता नहीं अंडर टेबल उन्होंने डीलिंग कर ली या क्या किया कि वो हमारे मुल्क का पानी बेच गए और उसका रिजल्ट ये हो गया कि अब हमारे दरियाओं में पानी नहीं होता सारा साल। जब बारिशें होती हैं, बरसात का मौसम आता है, इंडिया में पानी की फरावानी हो जाती है, तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो हमारे दरियाओं में छोड़ दिया जाता है और उसकी वजह से बाद औक़ात हम फ्लड की सूरत हाल से भी, सैलाबों की सूरत हाल से भी हमें निपटना पड़ता है और उसकी वजह से भी हमारे नुकसान होते हैं। तो पानी वाफर मिकदार में था, अब भी इसका अरेंजमेंट किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कर रहे। सोलर सिस्टम जो है उसके ऊपर भी टैक्स लगाने की बातें और उसको भी ज़रा स्क्रू टाइट करने की बातें हो रही हैं कि कहीं आसानी से कोई पाकिस्तानी जो है वो ना कर ले। जब आपने सोलर पे टैक्स लगाया हुआ है, आप उसको खरीदते हैं तो टैक्स पे करते हैं, तो उसके बाद फिर वापडा को क्या प्रॉब्लम है सोलर के साथ? इन्होंने अपना एक वो पर्सनैलिटी क्लैश बना लिया है, जिसके नतीजे में अब आवाम को सोलर के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा और अगर आपने सोलर लगाया हुआ है तो आप वापडा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह की पॉलिसियां जो हैं वो भी बन रही हैं। तो बिलों के ऊपर भी सर आप थोड़ा-सा बात कीजिए कि बिल जो ज़्यादा आ रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है या इसका भी सिर्फ सिंपली मकसद आवाम को तंग करना है? मैं 2-3 बातें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि मैं इस मैकेनिज्म को जानता हूं कि जितने भी रेंट के पावर हाउसेस हमारे पास चल रहे हैं, उनकी कॉस्ट किस तरह से गवर्नमेंट को पड़ती है। ये काम हम खुद करते रहे हैं। हमारी कंपनी में जब एक ट्रेंड आया था जनरेटर के साथ पावर करने का, तो हम किसी को अगर जनरेटर रेंट पे देते थे तो उसको 2 रेंट होते थे। एक रेंट होता था जो फिक्स होता था कि वो इस्तेमाल करें या ना करें, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेंट जो है वो पे करते रहेंगे। और दूसरा पार्ट ऑफ रेंट जो होता था वो वेरिएबल पार्ट ऑफ रेंट होता था कि उन्होंने इतने आवर जनरेटर को यूज किया है, उससे जो भी पावर उन्होंने पैदा किया है उसका इतना रेंट होगा। तो जितने भी हमारे पास प्राइवेट पावर हाउसेस चल रहे हैं वो भी इसी मैकेनिज्म के ऊपर चल रहे हैं और वो इसमें अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं और वो अंडर यूटिलाइज में भी गवर्नमेंट से चार्ज करते हैं। जो उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट का बिल किया है वो वेरिएबल कॉस्ट में उनको मिलता है और जो उनकी कैपेसिटी थी अंडर कैपेसिटी वो हुए उस अंडर कैपेसिटी का वो फिक्स पार्ट ऑफ रेंटल चार्ज करते हैं। तो मैं नहीं समझ पाया कि वो इतने सारे पावर हाउसेस जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से साथ मिलकर काम कर रहे हैं उनको अंडर यूटिलाइज क्यों किया जा रहा है। वो फुल कैपेसिटी के ऊपर चले, फुल कैपेसिटी की पावर दें और लोग बेचारे जैसे भी है, कोई जेवर बेच के, कोई एसी बेच के, कोई और चीजें बेच के बिल अदा करने के लिए, क्योंकि इतनी हबस वाले दिनों में गर्मी में जो कोई पेशेंट्स हैं, बड़ी एज के लोग हैं, इवन बच्चे हैं या लेडीज घर के अंदर बंद घरों के अंदर है, वो लाइट को इस्तेमाल किए बगैर रह ही नहीं सकती हैं। एक तो बात ये है। दूसरे हिस्से में आपने बहुत जबरदस्त बात ये की कि हमारे पास भी इंडिया की तरह बिल्कुल पानी के साथ बिजली, सस्ती बिजली बनाने का मौके हैं, लेकिन वहां भी हम मिसमैनेजमेंट करते हैं कि हम जहां कहीं कहीं बंद बांध के पानी को यूटिलाइज करके उससे पावर बनाई जा सकती है, उसको हम मैनेज करते ही नहीं। और तीसरी और अहम बात यह है कि ये जो बिल हम पे कर रहे हैं, इनका हिसाब किताब हमें आ ही नहीं रहा। मसलन खुद मैंने आज 1-2 लोगों ने मेरे से पर्सनली अपने बिल पास थे उनके और उन्होंने डिस्कस किया ये मामला कि जिससे कि हमारा 200 या 199 यूनिट का बिल बनता था और उसकी कॉस्ट से के कोई 4-4.5 हजार के करीब बनती थी। तो उन्होंने उसको 207 यूनिट डाल के हमारे बिल की कॉस्ट 9,000 पे पहुंचा दी। और फिर कारीगरी ये की, बहुत कारीगर हैं हमारे जो वापडा वाले हैं, कि उन्होंने नीचे वो प्रो रेटा बेसिस
रीडिंग का शेक डाल दिया उसके अंदर कि कितनी अजीब सी बात है कि बिल की जो मीटर की फोटो है वो बिल के ऊपर लगी हुई है, उसके ऊपर रेटिंग 199 या 200 है, और जो बिल आपको बिल हुआ है जिसके ऊपर आपने पेमेंट करनी है उसके ऊपर रीडिंग है 207, और नीचे लिखा हुआ है कि ये डिफरेंस ऑफ रीडिंग इज ऑन प्रो रेटा डेटा बेसिस, प्रो रेटा डेटा बेसिस। यानी ये आम बंदे को, तो आम इंसान को तो ये पता ही नहीं कि ये चीज क्या होती है, ये टर्मिनोलॉजी क्या है, तो वो उनके साथ अगर जाके बहस मुबासा भी करेगा, कोर्ट में भी जाएगा, वकील भी लेके जाएगा, तो वो डेफिनेटली एक और बहुत बड़ी फी होगी। इसके बावजूद मैंने उनको ये सजेस्ट किया है कि भाई बात यह है कि ये गूंगे बहरे वाली एटीट्यूड ठीक नहीं है, आपको एटलीस्ट आपने जो भी नियर ऑफिस वापडा का है वहां जाना चाहिए, और उनका जो भी सीनियर मोस्ट जीएम वगैरह है उसको ये इशू बताएं कि जी देखिए ये आपने फोटो खींची हुई है अपने कैमरे के साथ, जो मीटर के ऊपर बिल के ऊपर भी लगी है मीटर की, उसके ऊपर ये रीडिंग है, प्रो रेटा मैं क्या जानू क्या है, और जिसकी वजह से मेरा बिल 4,000 से 9,000 के ऊपर चला गया। तो कुछ इंसानियत से भी काम इनको लेना चाहिए। आपने जस्ट वॉल्यूम को डबल ट्रिपल करने के लिए 2-4 यूनिट बढ़ा के अगर वो ये हरकत कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है लोगों के साथ। इस सब कुछ के बावजूद लाइट नहीं आ रही। राजस्थान, मैं आपसे ऑन एयर हूं अपने एक रिलेटिव के घर से इस वक्त, यकीन कीजिए मैंने आपको मैसेज किया था कि पावर नहीं है, और मुझे दफ्तर से निकलते हुए मेरी मैसेज मिसेस ने कॉल किया, जी बिजली 12 बजे से नहीं है, और बीच में हमने यूपीएस एक तगड़ा लगाया हुआ है जो थोड़ी बहुत ही उसकी यूटिलिटी चलती रही है कोई 6, 6:30, 7 बजे तक, और 7 बजे के बाद हम अंधेरे में विदाउट पखा बैठे हुए हैं, यानी पखा भी नहीं, फैन भी नहीं ऑपरेटिंग। और फिर मैं काम में एक में अटका फंसा था, तो मैं वहां से दौड़ता हुआ आया हूँ, अपनी फैमिली को लिया और अपने रिलेटिव के घर आ गया हूँ, और वहां से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो ये ज्यादती दर ज्यादती है कि पैसे लेके भी ये प्रोडक्ट नहीं दे रहे हमें, जो हम यूटिलाइज करके इनकी मनमानी की प्राइस भी दे के इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये अजीब मामला है कि हमारे यहाँ जो बिलिंग के ये स्लैब्स बनाए गए हैं, 100 यूनिट पे कितना बिल, 200 पे कितना बिल, 300 पे कितना बिल। अब 300 से ऊपर अगर एक यूनिट भी ऊपर हो गया है तो बिल जो है वो 10 गुना हो जाता है। आज जिस बंदे का बिल, एक आम आदमी जो बिल्कुल गरीब है, 5 मरले के पोर्शन में रहता है, उसका बिल 25-25 हजार रुपया आ रहा है। अब गर्मी इतनी शदीद है कि घर में 2-3 अगर बेडरूम है तो वहां पे 2-3 पंखे चलते हैं, फ्रिज चलता है, एसी तो भूल जाएं। एसी मैं अगर अपना घर शायद आपको यहाँ से दिखा नहीं सकता, वो पिछले साल एसी उतार के बेच दिया है क्योंकि चल ही नहीं सकता। और यानी बगैर एसी के जो बिल है वो 2 बेडरूम के घर का वो आ रहा है 25,000। इस दफा मेरा बिल आया। अब वो समझ नहीं आ रही कि हम मजीद क्या बेच के इस बिल को हम पे करें। तो ये जो ज्यादतियां हैं इनको हुकूमती सतह हमारे मिनिस्टर नहीं देख रहे। क्या ये जो स्लैब्स डिजाइन करने वाले लोग हैं ये कहीं से वो जहन्नम से उठा के लाए हैं, जिनको किसी तरह की कोई अकल मत कहाँ से आए हैं ये लोग? किसने ये टैरिफ डिजाइन किया? यकीन करें लोग अपने घरों की चीजें बेचकर बिल पे कर रहे हैं। और ये इस कदर खतरनाक है कि अब लोगों की बस हो गई है। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन करें, ये कहते हैं टैक्स नहीं देते, अगर आप टैक्स की कैलकुलेशन करें आपके होश उड़ जाएंगे जितना टैक्स लगता है। अगर आप बिजली के बिल को ही कैलकुलेट कर रहे हैं, जितनी ओवर बिलिंग हो रही है, जितना टैरिफ ये जालिमाना अंदाज से बनाया गया है, इसके ऊपर जो पैसा हुकूमत के खजाने में जा रहा है वो बेइंतहा है। और फिर ये हमें भी लूट रहे हैं। और उसके बाद जो ज्यादती हो रही है वो ये है कि बैरूनी दुनिया से कर्जे भी हमारे नाम पे मांग रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, इधर से भी खा रहे हैं। ये इनकी जो ये
भूख है ये खत्म नहीं हो रही। हमारी अशराफिया, अच्छा सारे मर गए हमारे लिए, डेड हो गए, खत्म हो गए, जिंदा नहीं है। अगर जिंदा होते तो शायद थोड़ा बहुत इंसानियत के नाम पे चीखू पकार के ऊपर कोई बंदा उठ के देख लेता है कि कहाँ मसला है, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। अवाम इस कदर तंग है, आज भी हमारे मिनिस्टर कहाँ हैं जिनको हम टैक्स के पैसों से हमने गाड़ियां भी दी हुई हैं, हमने उनको मराहत भी दी हुई हैं, वो मिनिस्टर कहाँ हैं? उनकी कोई स्टेटमेंट आई? उन्होंने कोई वादा किया? उन्होंने कहीं ये कहा कि अवाम के लिए जो जिनके बिलों में कहीं ज्यादती हो रही है उनके लिए को हम सेल बना रहे हैं, कोई डिफरेंट उनके लिए कोई ऑप्शन दे रहे हैं कि वो जल्दी उनका मसला समझ लिया जाए, जिनको ओवर बिलिंग हो रही है, जिनको नाजायज बिलिंग हो रही है। खोता घोड़ा एक बराबर हो चुका है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमें एहतजाज करना होगा पाकिस्तानियों को, सड़कों पे रहना होगा, बिजली के मीटर उतारने होंगे। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह का एहतजाज करें कि हमारे मसले जो हैं उनको मसला समझा जाए और उन्हें हल करने की कोशिश की जाए। लेकिन अशराफिया को, हुक्मरानों को, हमारे तमाम जितने करता धरता हैं उनको कतन कोई गर्ज ही नहीं है कि हम परेशान हैं या हम खुश हैं या हम उदास हैं या हम तकलीफ में मुब्तला हैं। इसका कोई सलूशन कोई है आपकी नजर में? अवाम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कौन सा दरवाजा खटखटाएं? जी भाई साहब, आपने बहुत बेहतरीन बात की है और बिल्कुल आपका जज्बाती होना बनता है, और हम सब इस वक्त इस वजह से, इस मसले की वजह से जज्बाती हैं। है क्या, जिस तरह से आपने पहले बात करते हुए फरमाया कि जो लोग अपने तौर पे पावर का इंतजाम करते हैं सोलर की शक्ल में, ये उनको भी इंतजाम नहीं करने देते, उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगा के ये चाहते हैं कि वो काम ना चले, रुक जाए या कम हो जाए। अब ये अगर वो गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं कि ये किसी तरह से पावर पूरी नहीं करते हैं और इंसानों ने सांस लेना है, जिंदा रहना है और अपने टाइम वो इसकी कोशिश कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि इनको फैसिलिटेट करें। जैसा कि हम जो टीवी के एड्स होते हैं उसमें हम देखते हैं कि जी वो ग्रीन मीटर, ये मीटर, वो मीटर लगाएं और खुद भी आप सोलर के ऊपर अपने पावर का इंतजाम करें और गवर्नमेंट को भी बेचें। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके उल्ट मामलात हैं। जहाँ तक आपके सवाल का जिक्र है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, हल क्या है, तो देखिए बात यह है कि ये गूंगे बहरे लोगों का जब तक देश रहेगा तब तक बात नहीं चलती। मुझे वो जालिब का शेर याद आ रहा है कि चांद यहाँ ना निकला कर, ये देश है अंधे लोगों का। तो कमाल की बात, आज से बहुत पहले जालिब हमें चांद को मुखातब करते हुए समझा गए कि हम अंधे हैं, बहरे हैं, हमें कुछ नजर ही नहीं आता है। और हम तो बिल्कुल वो कैटेगरी हैं जो कहते हैं जूते मारने की कोई फिक्र नहीं, बस फिक्र है तो जूते मारने वाले लोग बढ़ाने की है। और ये सरकार हमारे वो लोग भी नहीं बढ़ा रही जो हमें जूते मारे, जो हमें टका के बिलिंग करें पर हमें बिजली देते रहे महंगे दामों। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम सबको करना क्या चाहिए। अगर हम गूंगे और बहरे नहीं बनना चाहते, हमें नजर भी आता है, सुनाई भी देता है और हम सब की जबानें भी काम करती हैं और लब आजाद हैं, तो फिर हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। चाहे गली मोहल्ले के लेवल पे आप गवर्नमेंट से या अपने लोकल नुमाइंदे जो हैं उनके पास जाएं और उनको कहें जी कि हमने आपको सिलेक्ट किस लिए किया है। इसलिए तो हम आम इंसान पार्टी वाले कहते हैं कि भाई ये लोग जो हैं ये इस काबिल ही नहीं है कि ये काम वो कर सकते हों। अगर वो काबिल होते तो हमारा ये हशर होता। इसलिए काबिल नहीं है कि ये आम इंसान नहीं है। जो आम इंसान नहीं है उसको आम इंसान की फिक्र नहीं है, क्योंकि ये आम इंसान की तकलीफ को समझते नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों की इस देश में जरूरत है जो हम में से हो, जो हम जैसा हो, जो हमारे दुख और दर्द को समझता हो और फिर हमारे उस दुख और दर्द का मदावा बने। तो एटलीस्ट हमें आवाज उठानी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि हमें कोई खाना जंगी करनी है, हमें कोई तोड़ फोड़ करनी है, बिल्कुल नहीं। मैं ये कहता हूं
कि हिकमत बसीरत से बेशक आप करें, लेकिन आप एहतजाज जरूर रिकॉर्ड कराएं, अपने लोगों को कराएं, अपने रोड को आके ब्लॉक करके कराना चाहते हैं तो कराएं, जो अरबाब इख्तियार हैं उन तक ये बात पहुंचाएं कि भाई आप हमारे सिलेक्टेड लोग हैं, हमने आपको वोट दिया है, अब पता नहीं किसको किसने वोट दिया और किसका वोट किसको कैसे चला गया, वो एक और टॉपिक है, कभी मौका मिला तो हम उसके ऊपर भी जरूर बात करेंगे। लेकिन जो हुआ सो हुआ, जो सेलेक्ट होके आ गए हैं, जो इलेक्ट होके आ गए हैं या सेलेक्ट होके आ गए हैं, दोनों सूरतों में हमने उनको अपने हुक्मरान माना हुआ है, तो बराए मेहरबानी वो भी कुछ ऐसी हरकतों सकनात करें कि जिससे आम इंसान का सांस लेना आसान हो जाए, ना कि सांस लेना दोबर हो जाए, जो इस वक्त हालत बनी हुई है। जी, आपको याद होगा कि जब इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने खास तौर पर यह ऐलान किया था कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे। और आज पीपल्स पार्टी जो है वो कहाँ खड़ी है? आज जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिए वो मुतालबा करें अपनी पार्टी से कि आपने वादा किया था, वो वादा किधर हुआ, वो वादा कहाँ गया? आज उस वादे को पूरा करने का वक्त है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इक़्तिदार के मज़े लेने के लिए अपने तमाम वादों को भूलना पड़ता है। मरियम नवाज़ ने भी एक दफ़ा ये स्टेटमेंट दी थी कि हम पता नहीं कितने यूनिट जो है वो फ्री देंगे। ये सुनी-सुनाई बातें कर देते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन आज मरियम नवाज़ को इसकी फ़िक्र क्यों नहीं है? हमारे जो नून लीग है, जो सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसको ये फ़िक्र क्यों नहीं है? आज हमारी सियासी जमातें अपने वोटर के साथ क्यों नहीं खड़ी? उसके मसाइल को, उसके गम-ओ-गुस्सा को, उसकी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए उनके पास क्या हिकमत अमली है? हकीकत ये है कि हमारे जितने ये नुमाइंदे हैं, वो जाली हैं। हमारे हर मसले को जब आप अच्छी तरह से कुरेदेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसके पीछे कोई ना कोई सियासी जमात मौजूद है। और आज भी ये जो बड़े-बड़े आईपीपीज़ हैं, उनके पीछे यही लोग हैं, इनके ज़ाती मफादात हैं। लिहाज़ा जो इन्होंने मुआहदे किए, वो इतने गलत मुआहदे किए हैं कि दुनिया की तारीख में ऐसे कभी मुआहदे नहीं देखे कि एक चीज़ चलेगी नहीं, ज़ीरो बिजली प्रोड्यूस करेगी, लेकिन उसको भी पैसे दिए जाएँगे। ये पाकिस्तान में ही हो सकता है, ये मुआज़ा और दुनिया में कहीं हो नहीं सकता। तो नाज़रीन, आज का शो जो है उन सब पाकिस्तानियों के नाम है जो बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, और हम अ, पाकिस्तानी अवाम को ये बावर कराना चाहते हैं कि आम इंसान पार्टी उनके साथ खड़ी है। और अगर आप आम इंसान पार्टी का साथ देंगे, और साथ आप कैसे देंगे कि आप खुद इलेक्शन लड़ेंगे, आप खुद सियासी अमल में हिस्सा लेंगे, खुद पार्लियामेंट तक पहुँचेंगे और इन मगरमच्छों का बाइकाट करेंगे, तो फिर आपके दिन फिर सकते हैं। फिर आप इस 76 साला तारीखी ज़ुल्म-ओ-सितम से बाहर निकल सकते हैं, अगर आप अपने जैसों का इंतखाब करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर ये बिल बढ़ते रहेंगे, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रहेंगी, गैस की कीमतें बढ़ती रहेंगी, टैक्स बढ़ते रहेंगे और ज़ुल्म बढ़ता रहेगा। इसके साथ ही मुनीर हुसैन दुग्गल को और राजा पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अपना सारे पाकिस्तान का, तमाम इंसानों का ख़्याल रखिएगा। रब रखा, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।